Hi, very good evening. A happy Diwali to everyone. Coming back to our classes. हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था. वी ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट मसल्स, bones. We also understood the importance of why do we need to remember the muscles and bones, इनका नाम क्यों याद करने की ज़रूरत है. And finally I come up with a sheet जो कि मैंने आपको दी थी. दो इस पे बहुत सारे blanks है, बहुत सारे नाम है. You don't have to remember everything, but you cannot skip everything also. आपको इनमें से काफ़ी नाम जो है याद होने पड़ेंगे, स्पेशली when it comes to appendicular skeletal system. So this primarily skeletal system, ribs in the vertebra, is part of axial skeletal system. But जो आप साइड में देख रहे हैं, this is more appendicular system. So ये system हमारे लिए ज़्यादा important है when it comes to strength and conditioning, when it comes to sports, because every now and then you have to refer कि ये मसल है, ये बोन है, ये मूवमेंट है, ये पैटर्न है, इसलिए we have decided कि इस वर्कशीट में we'll do it. So anytime you think that you should revise the name of muscles, you should come back to this worksheet and you should start writing names randomly. ये बहुत अच्छी exercise है. Then this is the posterior part of it, talking in the anatomical term. If you see this, you will find a lot of good muscles mentioned. So this is also a very good activity to revise the muscles name. बहुत important है आपको ये याद रखना. कई बार ऐसा होता है कि for example rotator cuff, it is a very important muscle when it comes to every sport which includes shoulder movement. कई सारी इंजरीज या फिर शोल्डर जैम एसोसिएटेड होता है रोटेटर कफ मसल से. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोटेटर कफ इज नॉट अ मसल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मसल. हमें कैसे पता चलेगा विच मसल्स एंड हाउ आर दे प्लेस्ड? सो इफ यू विल कम टू दिस पिक्चर, you will see that all these muscles which are even inside deep में भी जो है, so here you can see superficial and to the deep side of our muscular system. यहाँ पे you will see कि कई सारे muscles के नाम जो कि deep muscular tissues होते हैं या superficial नहीं हैं, जो हमें naked eye से नहीं दिख सकते, ये भी mentioned है. So this eventually will help you to practice कि आप muscles का नाम कितने अच्छे से याद कर पाते हैं. This will in turn improve your knowledge. जब भी आप इसमें बात करेंगे, discussion करेंगे, research papers पढ़ेंगे, anything, और मे बी अपने players को training देंगे. So if you need access to these two worksheets, because I always refer to these, please write an email or let me know. I'll definitely text you these worksheets. We have also covered, just let me quickly change, we have also covered planes and axes, क्योंकि जब भी हम movement की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि on which plane it is happening, what is the axis of rotation, and I'll quote a very good example, 2-3 examples कहाँ पे ये axis और जो planes है बहुत important होता है जब भी हमारी exercise को we need to follow a correct pattern, we need to follow correct form. आपने देखा होगा जब भी हम जिम जाते हैं we used to get different advices कि ऐसे हाथ रखना है, ऐसे हाथ रखना है, दिस शुड बी द मूवमेंट पैटर्न, दिस शुड बी द फ्लो, बट कौन सा फॉलो करना है, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्लेन्स एंड एक्सेस, राइट. प्लेन्स एंड एक्सेस में हमने देखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेन, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, बट ऑल्सो इट्स नॉट रिजिड कि हमें 3 प्लेन 3 एक्सेस ही होंगे. हो सकता है कि एक मूवमेंट, जैसे कि हमने बात की थी गोल्फ, जब हम गोल्फ पट करते हैं या फिर जब हम मूव करते हैं अपने जब मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं हम, या फिर फॉर एग्जांपल इफ वाइल स्विंगिंग द बैट, उसमें भी देयर आर मोर देन 2 एक्सेसेस, मोर देन 3 प्लेन्स आर इन्वॉल्व्ड वाइल डूइंग दैट मूवमेंट. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है गोल्फ के उसको बैट को क्या बोलते हैं, इसीलिए. सो एनीवेज, कमिंग बैक, सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस कि हम जब भी किसी मूवमेंट की बात करें, वो मूवमेंट क्या सही प्लेन में हो रहा है, देन ओनली वी कैन डिसाइड कि whether this movement is actually happening or not. So I'm not going to reread कि प्लेन क्या है, एक्सिस क्या है. गेस आपने उसका एक बार रिविजन किया होगा. इन केस नहीं किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट गो थ्रू इट. फिर यू विल फाइंड कि मैंने आपको कई सारे मूवमेंट्स भी दिए थे. These movements again have their own cardinal fundamental values.
आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं या आपका कोच कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं, और मे बी आप क्या सिखाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, बिकॉज स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं, उनके स्पेसिफिक नीड्स हैं। प्रोनेशन क्या है, सुपाइनेशन क्या है, इंटरनल रोटेशन क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन क्या है। तो जब आप ये गाइड करेंगे, इवन वाइल वी आर गोइंग फॉर वार्म अप, इवन वाइल वी आर गोइंग टू डिलीवर एक्सरसाइज टू अवर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट्स। तो मैंने आपको ये एक शीट दी थी, दो दिस वॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड। आज इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। वील बी रेफरिंग दिस इंटरेस्टिंग बुक बाय जोसेफ हैमिल, बायोमैकेनिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, एक्सेप्शनल बुक, वेरी सिंपल टू रीड। मैं आपको आई गिव यू द एक्सेस टू इट ऑल्सो। आपको इसमें सारे मूवमेंट्स बहुत सिंपली एक्सप्लेन किए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, कई बार वी ऑल्सो डू नॉट हैव अ वेरी राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन क्या है, एडक्शन क्या है। थ्रू दिस बुक एंड वाइल विल गो थ्रू एवरी मूवमेंट राइट नाउ डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बुक, वील अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली है क्या। बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ क्विक रिविजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यस एग्जैक्टली दिस वन, बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं एडक्शन की बात करूँ, एबडक्शन की बात करूँ, तो मैं रेफर करूँगा कि द मूवमेंट विल बी फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। सो वहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये जानना कि ये पोजिशंस हैं क्या। अगर आप में जिन लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, यू कैन स्किप दिस पार्ट, अदरवाइज यू शुड हैव अ रिविजन ऑफ इट। सो हमारी बॉडी के ऊपर वाला पार्ट इज ऑलवेज सुपीरियर, हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट इज ऑलवेज इंफीरियर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्म, अगर आप मेरे एरो इस कर्सर को फॉलो कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्म, राइट, दिस वन, सो यू विल फाइंड कि ये वाला इसका इंफीरियर पार्ट है, ये वाला इसका सुपीरियर पार्ट है, राइट। इफ यू सी दिस ट्रंक, ये वाला इसका सुपीरियर पार्ट है, ये वाला इंफीरियर पार्ट है। सो नो मैटर which body position, which exactly आप किस पार्ट की बात कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, बट इट हैज़ टू बी सुपीरियर इंफीरियर डिवाइडेड होगा, राइट। फिर उसके बाद कर रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे आपने बोला था एंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लेटरल डेल्टॉइड या मीडियल डेल्टॉइड जिसको हमने बोला था, ठीक है। देन देर इज मीडियल विच इज मिडिल लाइन, जो हमारी बॉडी के बीच से इमेजिनरी लाइन पास होती है जिसको हम वर्टिकल एक्सिस और प्लेन सैजिटल प्लेन बोल सकते हैं, जो मीडियल डिसाइड करती है, मीडियन डिसाइड करती है, एंड देन उसके बाद बाहर की तरफ जो जाता है वो लेटरल पोजिशन होता है, राइट। तो साइड टू साइड आपने देखा होगा, उसे लेटरल कहा जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। तो कभी भी जब हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं कि कौन सा हार्ट से क्लोज है और कौन सा हार्ट से दूर है, वेरी स्पेसिफिकली हार्ट से क्लोज कौन सा है, सो हार्ट से जो क्लोज होगा विल से प्रॉक्सिमल, और प्रॉक्सिमिटी, पास जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी फॉर पास एंड पी फॉर प्रॉक्सिमिटी। डिस्टल मीन्स दूर, ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि सुपीरियर इन्फीरियर हमने ये सब सुना हुआ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं आपको एक आई एम जस्ट गिविंग यू एनालॉजी, इसको याद कैसे रखें। प्रॉक्सिमल मतलब पास, पी फॉर पास, डिस्टल मतलब डी फॉर दूर, तो डिस्टल मतलब दूर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द मूवमेंट डिस्क्रिप्शन, हम बेसिक मूवमेंट्स की बात आज करने वाले हैं। जो सबसे पहला है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, इफ यू विल सी हियर, इफ यू विल सी हियर, ये वाला यू विल सी फ्लेक्शन। दो चीज़ें जब पास आ रही हैं, दो बोन्स जब पास आ रही हैं, उसको हम कह रहे हैं फ्लेक्शन। अगेन जब ये दूर चली जा रही हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने एल्बो का एग्जांपल लिया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ शोल्डर। शोल्डर जब पास आ रहा है अपने रेंज ऑफ मोशन में, जब क्लोज आ रहा है दो बोन्स के, दिस इज नोन एज फ्लेक्शन। देन अगेन वो जब दूर जा रहा है, इट इज नोन एज एक्सटेंशन। सिमिलरली फॉर थाई, फॉर हिप, फॉर नीज, एवरीथिंग, जब भी वो एक दूसरे के पास जा रही है, लेकिन एनाटॉमिकल पोजीशन में, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एनाटॉमिकल पोजीशन में और अपने नेचुरल मूवमेंट में, ठीक है। So how do we define flexion? Flexion is a bending movement in which the relative angle of the joint between two adjacent segment decreases. It is always going to decrease. If it is flexion, it is going to decrease. कई बार आपको MCQ में कुछ questions मिलेंगे which could be confusing, but if you'll come to the fundamental, आप जब basics पे आएंगे तो you will find कि joint के angle अगर decrease हो रहे हैं, adjacent segment अगर decrease हो रहे हैं, then it is flexion. उसके उल्टा एक्सटेंशन इज अ स्ट्रेटनिंग मूवमेंट इन विच द रिलेटिव एंगल ऑफ द जॉइंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेगमेंट्स इंक्रीजेस। सिंपल है,
जब आपके दो जॉइंट के एंगल एडजेसेंट एंगल्स इंक्रीज हो, या सॉरी एडजेसेंट सेगमेंट से जो एंगल बन रहा है वो इंक्रीज हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस एज द जॉइंट रिटर्न टू द जीरो और रेफरेंस पोजिशन। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो यू विल फाइंड कि ये जो नी है ये फ्लेक्शन तो हो गया, ठीक है, जॉइंट एंगल कम हो गया थाई के बीच में, अगर इफ वी कॉल इट फीमर एंड इसके बीच में जॉइंट एंगल कम हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन वापस आना, जीरो पोजीशन पे आना, जहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, रिलेटिव एंगल इंक्रीज हो रहा है दोनों के बीच में, इट इज नोन एज एक्सटेंशन। तो दो दिस मूवमेंट लुक्स ऑब्वियस कि अरे यार ये तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हमारा पैर वापस ही आएगा, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन से जान सकते हैं, joints return to the zero or reference position. reference position मतलब anatomical position is known as reference position, ठीक है। then hyperflexion, a person can perform hyperflexion if the flexion movement goes beyond the normal range of motion. तो hyperflexion बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर एक्सटेंशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म, आपको ये चीजें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, shoulder only when the arm moves forward up in the flexion through 180 until it is at the side of the head. अगर आप शोल्डर वाले उस पे जाएंगे तो आप यू विल फाइंड, मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, दिस वाज फ्लेक्शन। इसके ऊपर अगर ये जा रहा है तो दिस इज हाइपर फ्लेक्शन, राइट, हाइपर फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इस जो दो सेगमेंट इस पर्टिकुलर एंगल को बना रहे हैं अब वो क्रॉस हो चुके हैं, और अब वो जब क्रॉस हो चुके हैं, मेरे यहाँ पे तो उनका जो नॉर्मल एंगल है वो काफ़ी क्रॉस हो चुका है, इसको हम बोलेंगे हाइपर फ्लेक्शन। सिमिलरली अगर इनका जो नॉर्मल एंगल है वो क्रॉस हो चुका है तो इसको हम बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन। यू कैन रीड द डेफिनेशंस, यहाँ से आपकी सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है। राइट, इसमें काफ़ी रोल प्ले करता है आपका ओरिजिन क्या है, ये हम बस एक मिनट में समझते हैं। इसमें आपका मसल का ओरिजिन क्या है, उसका नॉर्मल जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या है, उसका नॉर्मल एंगल क्या है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। बट मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल पोजीशंस में अगर आप फॉलो करेंगे तो हमने वो मूवमेंट्स हमेशा किए होते हैं हमारी डेली लाइफ में, इसलिए इट इज़ ईजी फॉर अस टू डिस्क्राइब कि फ्लेक्शन क्या, एक्सटेंशन क्या है और हाइपर एक्सटेंशन क्या है, राइट। सो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं अपने सबसे पहले हेड का, इफ़ यू फॉलो द कर्सर, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के बियॉन्ड हाइपर एक्सटेंशन। सिमिलरली फॉर ट्रंक, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन विच इज जीरो पोजिशन, एंड देन दिस इज हाइपर एक्सटेंशन। फॉर थाई, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हिप flexion, hip extension, and then hip hyper extension. Then for leg, और leg की जगह हम बोल सकते हैं इसको नी, क्योंकि कई बार आप जब स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो आपको यू विल फाइंड नी इज यूज्ड मोर ऑफन अदर देन लेग। फिंगर्स के केस में इट इज सिंपल, हैंड के केस में इट इज सिंपल, यू विल सी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन। अब याद रखिएगा एनाटॉमिकल पोजीशन है तो यू हैव टू प्लेस द palm लाइक दिस अपवर्ड फेसिंग, so this is flexion, this is extension, the zero position, and this is hyper extension, right? देन फोर आर्म हमने देखा, एल्बो जिसको हमने कहा है, देन आर्म विच इज शोल्डर मूवमेंट, राइट। सो मैं कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और भी यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल द वन इज, आई हाईलाइट हियर, मैं हाईलाइट करता हूँ, adduction is the movement away from the midline of the body. So if now you know do not know the midline, आपके लिए प्रॉब्लम है, बट नाउ वी नो कि midline क्या है। सो इट फॉर इट इज सिंपल कि midline से जब बाहर कोई भी चीज़ जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कई बार सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, टू टू लेग आउट और टू द स्प्रेडिंग ऑफ फिंगर्स, स्प्रेडिंग ऑफ टोज, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? दिस इज एबडक्शन, क्योंकि मिड लाइन से चीज़ें बाहर जा रही हैं, हमारा बॉडी पार्ट बाहर जा रहा है, इसलिए उसे एबडक्शन बोलते हैं। Then hyperabduction again can occur in the shoulder joint as the arm moves away 180 degree from the side. इसको हम बोलेंगे हाइपर एडक्शन। सिंपली कमिंग टू अडक्शन, ऐड करना किसी भी मूवमेंट में ऐड करना। सो अडक्शन इज द रिटर्न मूवमेंट ऑफ द सेगमेंट बैक टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। लेटरल टू मीडियल आना भी आप इसको अडक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अडक्शन और प्रोट्रैक्शन, अब जैसे स्कैपुला में ये पर्टिकुलरली जो टर्म है वो स्कैपुला में यूज़ किया जाता है। इफ यूल सी हियर, ये प्रोट्रैक्शन वाला, अगर आप अपने स्कैपुला को मूव करें, बाय द वे दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज छोटी माइनर मसल्स को इन्वॉल्व करने के लिए, तो यू विल सी कि स्कैपुला में प्रोट्रैक्शन बोलते हैं, ऑल्दो इट इज़ नोन एज एबडक्शन, स्कैपुलर एबडक्शन, स्कैपुलर एडक्शन, और रिट्रैक्शन भी बोल सकते हो उसको, रिट्रैक्ट करना, पुल करना, रिट्रैक्ट करना, एंड देन प्रोट्रैक्ट करना, राइट।
Then you can see images here: hyper abduction, abduction, adduction, hyper adduction. टोज में भी आपने देख लिया. देन यहाँ पे आपने देख लिया, these are very good important exercises for our adductors and abductors. ग्रोइन मसल उसमें से एक है. ये सब ये सब यूजुअली हम एक्सरसाइजेस करते हैं. देन हैंड में होता है जिसको आप अल्नर फ्लेक्शन बोलते हैं या अडक्शन एबडक्शन बोल सकते हैं, रेडियल फ्लेक्शन बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे रेडियल मसल्स इन्वॉल्व है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ई फिगर. देन कमिंग टू एफ, दिस इज सिंपल स्प्रेडिंग ऑफ फिंगर्स, मैंने आपको बताया. ये भी जो है इन्वर्जन एवर्जन भी कई बार इसे बोलते हैं, एडक्शन एबडक्शन, इन्वर्जन एवर्जन. तो इसका जो इलोंगेटेड फॉर्म है, जो प्रैक्टिस फॉर्म है, इफ़ यू रियली वांट टू हैव प्रैक्टिस ऑफ एवरी मूवमेंट, भाई क्या किसको बोलते हैं, दिस इज समथिंग फॉर यू. यू ऑलरेडी हैव इट इन योर प्रीवियस असाइनमेंट शीट जब मैंने आपको भेजा था. स्कैपुला एलिवेशन, डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, एवरीथिंग. इट इज क्लासिफाइड जॉइंट टू जॉइंट. ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में कौन सा होता है? एल्बो में ऑल द पॉसिबल मूवमेंट्स. रेडियो अल्नर जॉइंट, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसको जॉइंट के वाइज पढ़े तो. सो यू विल सी कि आप जिसको एल्बो कह रहे हैं दैट इज रेडियो अल्नर, सॉरी रेडियो अल्नर जॉइंट. रेडियो अल्नर जॉइंट जहाँ पे एल्बो के पास दोनों मसल, दोनों जो हमारी बोन है वो मिली होती है और एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, ओवरलैप करती है, उसको हम बोलते हैं रेडियो अल्नर सुपाइनेशन और प्रोनेशन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट. रिस्ट एक्सटेंशन. सो आई लीव दिस टू यू. इसमें बहुत सारे कई सारे अननेसेसरी भी है, मतलब फिंगर्स और इन सब पे आप उतना ध्यान ना देंगे तो भी चलेगा. बट नीज के बारे में, हिप के बारे में, एंकल्स के बारे में, बैक के बारे में, जैसे यहाँ पे लंबर लेटरल फ्लेक्शन दिया है, लंबर एक्सटेंशन दिया है, बिकॉज दीज आर द यूजुअल एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं. सर्वाइकल फ्लेक्शन दिया है. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यूजुअली करते हैं, तो आपको इन इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव, इसको और ध्यान से समझने के लिए वी विल टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. एक बहुत अच्छा एनिमेटेड एग्जाम्पल मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर फिनोमिना वेरी नाइसली एंड वाइसली. मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, राइट. I've switched off the volume of this. I'll be explaining it. By the way, this is a very good platform, anatomy lab.com. आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं. And I give my whole credit to the to one who have created the video. Phenomenal work. All right. So यहाँ पे we'll start it. कैप्शन को यहाँ कर देते हैं so that it does not disturb us. If you will see, this is a demonstration of hip joint, right. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये hip joint है, ये आपका knee joint है. एक मूवमेंट में कई सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, एक मोशन में कई सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं. यहाँ पे हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो सकता है, एंकल का हो सकता है, सॉरी नी का हो सकता है. हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हिप की. तो अगर आप देखेंगे तो हिप जो है अपने जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं, हिप को बॉल एंड सॉकेट में फंसा हुआ है. अब वो डिसाइड करेगा कि इसका फ्लेक्शन किधर होगा, एक्सटेंशन किधर होगा. तो इफ यू सी, दिस इज द फ्लेक्शन, दिस इज द फ्लेक्शन. यहाँ पे इसका फ्लेक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि जो दो सेगमेंट्स है जिसको हम बोन्स बोल रहे हैं, द फर्स्ट वन इज फीमर एंड द सेकंड वन इज पेल्विक बोन, जो है ये यहाँ आपस में इनका एंगल विच इज़ वेरी नेचुरल, आप देख पाएंगे एंगल इनका कम हो रहा है. इस एंगल कम होने को हम फ्लेक्शन बोलते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो ये एंगल जो है इसमें कम हो रहा है, सो दिस इज नोन एज नी फ्लेक्शन. एंड अगर किसी को डाउट है तो नी कैन नॉट बी ओवर हाइपर एक्सटेंशन नहीं हो सकता उसमें, करेक्ट. ना तो हाइपर फ्लेक्शन हो सकता है इन नॉर्मल केसेस, ना तो हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है. बट फ्लेक्शन क्यों आगे की तरफ नहीं हो रहा है? जैसे क्योंकि यहाँ पे जो दो बोन्स है ये डिफर करती है. ये दीज आर नॉट द टू बोन्स इन सिमिलर नेचर विच वॉज हियर. यहाँ पे ये जॉइंट अलग है, ये बोन अलग है, इसका रेंज ऑफ मोशन अलग है एनाटॉमिकली. इसलिए यहाँ का फ्लेक्शन आप जो एंगल नापेंगे तो वो यहाँ से आप मेजर करेंगे. जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये यहाँ पे इसका एंगल यहाँ ऊपर से मेजर होगा, राइट. तो it is sometimes it becomes very important to understand this, especially when you deal with biomechanics. आपको पता हो रहा है कहाँ से एंगल आपको कैलकुलेट करना है, right. So this is flexion, normally this is extension. You can have a very good look. Then adduction, sorry abduction. Abduction मतलब moving away from the medial line. ये medial line अगर आप इसको माने तो ये बाहर जाना मतलब abduction, अंदर आना मतलब adduction.
देन यू विल फाइंड इंटरनल रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार, हमें लगता है कि इंटरनल रोटेशन मतलब टोस अंदर की तरफ घूम रहे हैं, अगर आप इसमें देखो तो टोस अंदर की तरफ घूमते हुए मिलेंगे आपको, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये टोज का मूवमेंट नहीं है, ये टोज का मूवमेंट नहीं है, ये है आपके हिप का मूवमेंट, आपके हिप का इंटरनल रोटेशन। इफ यू विल फोकस हियर जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हिप अंदर की तरफ मूव कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट द टो विच इज़ मूविंग, नाइदर द एंकल नॉर द नी, द मूवमेंट प्राइमरीली ओरिजिन्स जहाँ से हो रहा है वो ये आपका ये मूवमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हिप इंटरनल रोटेशन, जब आप इसको समझेंगे। देन एक्सटर्नल रोटेशन, देखिए यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ये जब वापस आएगा यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, देखिए वापस आ रहा है ये, करेक्ट। देन सरकमडक्शन, सरकमडक्शन यूजुअली कहाँ पे होता है, जहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो सबसे प्राइमरली सरकमडक्शन होता है हमारे शोल्डर में, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, तो सरकमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी मूवमेंट। आपके हिप में भी होता है, जब हमारे ये वाली एक्सरसाइज जब हम करते हैं हिप ओपनर्स, थोड़ा हिप को ओपन करते हैं, वार्म अप्स में यूजुअली की जाती है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सरकमडक्शन है वो यहाँ पे हो रहा है। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होते हैं ये हमारे इवेंचुअली आवर बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मूव, बोन्स को पुल और पुश कौन करता है, दीज आर मसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल। मसल्स उनको जिस तरीके से, जो अलाइनमेंट मसल्स का होगा, इसलिए हम अभी लेटर ऑन विल ऑल्सो हैव टू लर्न कि किस मसल का ओरिजिन कहाँ से है, फिर उसका इंसर्शन कहाँ पे है, कहाँ से निकली है, कहाँ से वो इंसर्ट हुई है कहाँ पे। तो इफ़ यू विल सी दिस सोअस मसल, ये हमारे बैक से निकल के जो हमारी फीमर बोन है उसके जो हेड है उसके नीचे अटैच हुई है, तो यहाँ पे यू विल सी कि इसकी जो एबिलिटी है, तो हम जो सिटअप्स करते हैं या जो लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस करते हैं मोस्टली, उसमें ये जो है मसल ट्रेन होती है, राइट। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक तो सोअस माइनर एंड मेजर जो मैंने अभी आपको बताया, एंड दिस इज इलेकस, इलेकस, ये दोनों ही मसल रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हिप को क्या करने में, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन करने में, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल वन, एक्सटेंशन करने में कोई दूसरी मसल इंपॉर्टेंट है। तो कई बार नेट के एग्जाम में अगर इफ़ यू आर अ नेट एस्पिरेंट, तो यू विल फाइंड कि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया, तो आप बताइए कि वो फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ या क्या हुआ, एंड व्हाट विच मसल्स वर इन्वॉल्व। आप जब चेयर से बैठते हैं, चेयर पे उठते हैं, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, कौन सी मसल्स है, हिप फ्लेक्सर्स कौन से, हिप एक्सटेंसर्स कौन से। सो इफ़ यू कैन रिकॉल द मूवमेंट, आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाले ना एक्सटेंसर्स है, ये वाले हिप फ्लेक्सर्स है। ऑब्वियसली थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बट इट मेक्स ईजी फॉर यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लेक्सर्स हैं, दीज आर द फ्लेक्सर्स, सोअस मेजर माइनर इलेकस, ये आपकी फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, पुल करते हैं आपके हिप को या आपकी फीमर बोन को, इवेंचुअली रोटेटिंग योर, नॉट रोटेटिंग बट फ्लेक्सिंग योर हिप, राइट। तो दिस वाज द बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहूँगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोट किया था, लेट मी जस्ट रीवाइंड दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको आई वांट यू टू हैव अ रिसर्च। आपने सुना होगा व्हेन यू, आप ट्राई भी करके देख सकते हैं, व्हेन यू यूजुअली डू अ स्क्वाट, अगर आप मेरे हाथों को देख पा रहे हैं तो अगर आपके, इमेजिन दीज एज योर टोस, मेरे जो हैंड्स है, इमेजिन दीज एज योर टोस, अगर आप ऐसे टो रख के स्क्वाट करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू स्क्वाट्स, फुल स्क्वाट, हाफ स्क्वाट, बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। सो इट इज़ यूजुअली एडवाइज्ड फॉर यू टू स्लाइटली rotate your toes outward, rotate your toes outward, important, toes rotate नहीं हो रहे, toes are facilitating the rotation, eventually rotate क्या हो रहा है, ये हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था, लेट मी, हाँ, हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था वो क्या है, जो बॉल है, जो हिप जॉइंट है वो रोटेट हो रहा है बाहर की तरफ। अब जब आप बाहर की तरफ रोटेट होता है उसको, आप देखेंगे आपका जो स्क्वाट लगाने का जो फॉर्म है, एक्सक्यूज मी, जो फॉर्म है वो बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया। आप खुद ट्राई करके देखिए, जब आप नॉर्मली स्क्वाट करते हैं तो टफ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा आउटवर्ड बाहर की तरफ जब उसको एक्सटर्नली टिल्ट कर दे, रोटेट कर दे, इट इज़ वेरी ईजी एंड फ्लॉलेस फॉर यू टू बेंड इन स्क्वाट, बहुत ईजी हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, कि हमारा जो नेचुरल प्लेन है ना स्क्वाट करने का, द सेजिटल प्लेन,
दो इज सैजिटल प्लेन। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे मैं सॉरी जस्ट अ मोमेंट, अगर आप देखेंगे हमारा जो नेचुरल प्लेन है हिप का, जो पेल्विक मसल, ये पेल्विक बोन है जो 3 बोनों से मिलके बनती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, दिस वन इज नोन एज एसिटेबुलम। तो ये जो प्लेसमेंट है फीमर हेड का एसिटेबुलम में, जो प्लेसमेंट है इट इज स्लाइटली टिल्टेड। अगर आप इसको इमेजिन कर पाए तो आप ये वाला जो एरिया देखेंगे स्लाइटली टिल्टेड है बाहर की तरफ हल्का सा, ये सैजिटल प्लेन नहीं है। आप इमेजिन कीजिए सैजिटल प्लेन जो कि एकदम स्ट्रेट होगा यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो बोन है आपका, जो शाफ्ट है, ये हल्का सा बाहर की तरफ टिल्टेड है। अब ये बाहर की तरफ, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसका नाम लूँ तो यू शुड बी अवेयर कि क्या है, तो दैट इज़ वाई हमें बोन के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आप इसको हल्का सा बाहर की तरफ टिल्टेड कर देंगे तो यू विल सी कि जो प्लेन है, जो प्लेन है मूवमेंट का प्लेन है, एंड जो एक्सिस है इस हेड की, फीमर हेड की, वो अलाइन हो जाती है। और इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू, आप, मैं आपको आई विल शेयर द वीडियो ऑल्सो, वो बहुत इजी कर देता है आपको, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को इजी बना देता है। इसीलिए हमें जब भी कोई मूवमेंट करना है, वी डोंट हैव टू टेक एनी एडवाइसेस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कोई एडवाइस नहीं लेना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि आपका प्लेन एंड एक्सिस इज राइटली अलाइंड, बस। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल उसमें। जब भी हम पुल ओवर्स करते हैं या फिर हिप नी फ्लेक्शन करते हैं, नी का एग्जांपल लेते हैं, नी फ्लेक्शन करते हैं यूजिंग द मशीन, नी फ्लेक्शन मशीन अगर आपने देखा होगा तो यूजुअली उसमें जो एक्सिस होती है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप ध्यान से जाके जिम में देखिएगा, उसकी जो एक्सिस होती है आप डिसाइड कर सकते हैं। आप जैसे ही अपनी एक्सिस को सही पोजीशन पे लाएंगे, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप विल डू द प्रैक्टिकल, यू विल फाइंड कि आपका रेंज ऑफ मोशन एकदम बढ़ गया, ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। सिमिलरली आप ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है, हम जो ये करते हैं, इफ़ यू विल सी कि आपके जो शोल्डर प्रेसेस हैं, दीज आर नॉट द वे यू डू इट। अगर आप इसको ऐसा करेंगे, आई विल शेयर द वीडियो ऑल्सो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो स्कैपुला है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, सामने की तरफ है। इसीलिए रीज़न बोलते हैं कि आप जिम में जाएंगे तो आपको कोई अच्छा, जिसका फॉर्म अच्छा होगा, दे विल एडवाइस कि आप हल्का सा इसको टिल्ट करो। दिस इज़ द नॉर्मल, इफ़ यू विल सी मी, दिस इज़ द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ योर बॉडी। जो आपका स्कैपुला है वो नॉर्मली ऐसे साइड की तरफ टिल्टेड है, एंड देन यू डू दिस, बहुत इजी। लेकिन आप ये करेंगे विथ एन एक्स्ट्रा लोड, यू कैन नॉट बियर इट, और आइदर यू विल बी सब्जेक्ट टू इंजरी, आपको इंजरी होना 100% गारंटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए आप इसको हल्का सा ऐसा करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो प्लेन ऑफ मोशन है दिस इज टिल्टेड। तो ये प्लेन्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए कि आप इसको मूवमेंट कहाँ पे करना है। सिमिलरली हिप के प्लेन है, शोल्डर का प्लेन है, when you do biceps this is also one of it follows the sagittal plane, but क्या ये ardent sagittal है या थोड़ा सा tilted है, sorry, that you have to see. um, so now I have various examples, या मैं आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई कि ये समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट जस्ट, आप जो इमेज अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इट इज़ नॉट सिंपली सैजिटल और इट इज़ नॉट सिंपली फ्रंटल। ये प्लेन्स इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि प्लेन्स कौन से मूवमेंट्स कौन से प्लेन्स में होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ इन्हीं प्लेन्स को फॉलो नहीं करती, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सो यू विल फाइंड अ स्कैपुलर प्लेन। जब भी आप, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब भी आप शोल्डर मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग डंबल प्रेस या शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस, शोल्डर प्रेस जब आप कर रहे हैं, या फिर आप जब डंबल फ्लाइज कर रहे हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाएगा यूजुअली, और यू ऑल्सो सजेस्ट पीपल, कि आप इसको डेड स्ट्रेट मत रखो, आप एकदम स्ट्रेट मत रखो, यू हैव टू टिल्ट इट अ बिट। और वो टिल्ट करने से बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक रिलैक्सेशन आपके जो मूवमेंट है उसमें मिल जाएगा। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए, तो मुझे ये मिला। अगर आप इसको देखोगे, जो आपकी एनाटॉमी है, आपके शोल्डर की एनाटॉमी, यू विल फाइंड, अगर आप इसको देखोगे जहाँ मेरा कर्सर है अभी, तो यू विल सी कि जो आपका स्कैपुला है वो हल्का सा टिल्टेड है बाहर की तरफ, ऐसा हल्का सा सामने से डिप्ड है। अगर सामने अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ वो हल्का झुका हुआ है। उस झुका होने की वजह से इट मेक्स योर शोल्डर ऑल्सो अ बिट राउंडेड फ्रॉम इन फ्रंट, और जब ये राउंडेड होता है तो आपका जो मूवमेंट होता है वो मोस्टली
ईजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है जब आप भी अपना मूवमेंट Lower trapezius ये and देखिए। serratus सो anterior. यू यूजुअली डू नॉट पिक द मूवमेंट एकदम आप आर्डेंट साइड में नहीं करते हो, आप हल्का सा सामने जब करते हो तो वो अपने नेचुरल प्लेन में वॉक करता है, आपका जो मूवमेंट है During वो upward rotation of the scapula with arm जो नेचुरल मूवमेंट है वो आपका इस तरीके से काम करता है, राइट। आई हैव फ्यू अदर डेमोन्स्ट्रेशंस टू जहाँ से मैं आपको शायद और अच्छे से बता पाऊंगा कि मैं challenging एग्जैक्टली क्या recovery बोलना चाह can रहा हूँ। be when the सो shoulder अगर is आप इस injured. वाले उसको देखेंगे आपके इमेज को तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो आपके शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है दिस इज अ लिटिल बिट, देखिए ये ऊपर जाके ये जो मूवमेंट है ये स्टक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ के बाद रूम खत्म हो जाता है बिकॉज द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इज डेड हियर यहाँ पे, और अभी इसमें मसल्स ऐड होंगी, लिगामेंट ऐड होगी, तो उसके बाद आपके पास मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए यूजुअली इट इज़ प्रिस्क्राइब कि जब भी आप ये मूवमेंट कर रहे हैं दैट टू विथ हैवी वेट यू यूजुअली टिल्ट योर एल्बोज या टिल्ट टू योर आर्म्स, उससे होगा कि आपके स्कैपुलर प्लेन पे, मैं बार बार इसीलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। स्क्वाट में भी ये सेम फॉलो होता है, इवन इफ यू आर डूइंग डेडलिफ्ट इट इज़ फॉलोड। इफ़ यू विल फाइंड लंजेस आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लंजेस में, इफ़ यू विल सी दिस कि आपके टो कैसे एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं, शोल्डर जो मोशन है उसमें सिमिलरली यही होता है। इफ़ यू विल सी आप जब बेंच प्रेस करते हैं हैवी से तो भी आपके आर्म्स का जो मूवमेंट है वो अपने आप चेंज हो जाता है, दे फॉलो द नेचुरल पैटर्न। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू टूडे कि भाई प्लेन्स एंड जो मूवमेंट्स है उन सब का इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेन्स एंड एक्सिस का इंपॉर्टेंट क्या है। अदरवाइज वी गो ऑन रीडिंग दिस टेक्स्ट बट हमें एक्चुअल उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें नहीं पता चल पाता, राइट। I just wanted to see want you to see this anatomy of shoulder so that आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएं। और ऐसे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आई सजेस्ट जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, आई यूजुअली डू दिस, आप जाइए थोड़ा देखिए, यू विल बी वेरी फैसिनेटेड बाय कि यार कितने अच्छे एनिमेशंस बनाते हैं आजकल लोग, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। ये इन्हीं की वजह से हमें समझ में आता है कि यार एग्जैक्टली एनाटॉमी कैसे काम करती है। सो प्लीज़ आपको प्लीज़ डू रेफर टू दीज मूवमेंट्स। मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, अगर आप इफ़ यू सी द नेचुरल प्लेन, ये देखिए ये प्लेन सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, हल्का सा टिल्टेड है सामने की तरफ, और अब जब आप इसको मूव करते हैं तो आप देखिए आपको, अगर आप सीधा मूव कर रहे हैं तो आपको ये कंफर्टेबल नहीं फील होगा, हल्का जब आप टिल्ट करेंगे तो और आप खुद मतलब आई गेस आप सभी ने ये फॉलो करके देखा होगा, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। Though this video talks comprehensively about all the shoulder and its anatomy, so this was it from my end today. इस चीज़ को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, बहुत सारे मूवमेंट्स है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया थाई से हिप से लेके ट्रंक के बहुत सारे मूवमेंट्स एंड ऑल्सो द डिस्क्रिप्शन, key descriptions, everything is written here. You we also have this टेबल इन द रिव्यू फॉर्मेट कि आपको अगर फटाफट रिव्यू करना हो तो यू कैन रिव्यू दिस। सो दिस इज़ व्हाट इट वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू दिस ओनली, फिर उसके बाद हम सेल और फिजियोलॉजी पे जाएंगे सो दैट इट मेक्स कंटिन्यूटी कि हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम किन्सियोलॉजी को ही आगे लेके जाते हैं, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अ पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड देन विल कम बैक टू फिजियोलॉजी, और जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी आई अमेंड इट एज पर आवर नीड, राइट। So thank you so much, thank you so much for your time. दो काम है मेरी तरफ से आपको। द फर्स्ट वन इज प्लीज फाइंड आउट सम ऑफ द प्लेन्स विच आर नेचुरल प्लेन इन ह्यूमन बॉडी, जो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, आप अपने जिम में जाते हैं तब उसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज डू हैव अ नोट ऑफ ऑल दी मूवमेंट्स जो हमने डिस्कस किए हो चाहे ना किए हो, मैंने आपको नोट्स दिए हैं ऑलरेडी, उसमें से जितने भी मूवमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, आप प्लीज़ उसको याद करके रखिए, बिकॉज दीज यूजुअली गिव यू अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि आप कहीं एक्सप्लेन करना है, आपको कुछ भी करना है, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच, वील एंड दिस क्लास टुडे हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।